Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. Here we are studying class 9 mathematics and here we are on the chapter number 4, that is linear equations in two variables. So if you have not subscribed my channel, you can subscribe the channel Learn with Nisha ji for regular updates. And also if you want to join online one-to-one sessions, you can fill up the form given in the description section. Okay. See, any equation which we can put it in the form of like ax plus by plus c equal to 0, जिसमें a, b, c हमारे real numbers हैं, a and b are not 0 actually. So this is called a linear equation in two variables. तो variables क्या हो जाएंगे, x और y, ठीक है. So like we have an example here, write each of the following equations in the form ax plus by plus c equal to 0 and then indicate the values of a, b, c. ठीक है. तो जैसे फर्स्ट पार्ट गिवन है तो बेसिकली हमें सब कुछ एलएचएस पे लेके जाना है, ठीक है, तो ताकि आरएचएस 0 हो जाए. सो वी टेक इट हियर, इट बिकम्स -4.37, दिस होल इक्वल टू 0. तो a हो जाएगा 2, x का कोएफिशिएंट, b हो जाएगा y का कोएफिशिएंट 3 और c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म विद साइन -4.37, राइट. सेकेंड पार्ट, इसमें हमारा √3y इधर से इधर आएगा, माइनस बन जाएगा, राइट. दिस इज द इक्वेशन. a हो जाएगा 1, b विल बी -√3, c विल बी -4. ओके. थर्ड पार्ट में 4 को हम इधर ले जाएंगे, सो इट बिकम्स 5x - 3y - 4 इज 0. a विल बी 5, b विल बी -3, c विल बी -4. ओके. So they are saying this can be written like this also. हाँ, हम ऐसे भी लिख सकते थे, -5x इधर आ जाए प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. बोथ आर करेक्ट. इसमें a -5 हो जाएगा, b 3 हो जाएगा और c 4 हो जाएगा. दोनों ही आंसर्स करेक्ट है, राइट. लास्ट इज 2x इक्वल टू y, तो आप इसे इधर ले जाओ. 2x - y प्लस 0 इक्वल टू 0. a 2 हो जाएगा, b -1 और कांस्टेंट टर्म 0 है तो c 0 हो जाएगा, राइट. Then we have equations of the type like ax plus b equal to 0. So they are also examples of linear equations in two variables. इसे हम लिख सकते हैं कि y का कोएफिशिएंट 0 है, क्योंकि 0 into y is 0, right? So example 2 is write each of the following as equations in two variables. तो basically x equal to -5 है. तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो x plus 5 हो जाएगा, प्लस 0 into y कर दूं, ठीक है. y equal to 2 है तो x into 0 ऐड कर दिया, ठीक है. 2x इक्वल टू 3 है तो 2x - 3 हो जाएगा और प्लस 0 into y. 5y इक्वल टू 2 है तो 5y - 2 and 0 into x. Like this you can write. Here we come on to exercise 4.1. First question is, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Okay. Write a linear equation in two variables to represent this statement. So we take the cost of a notebook as rupees x, that of pen as rupees y. ठीक है. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमें क्या पता है इसमें कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है दैट इज x, ठीक है, दैट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन 2y. ठीक है. तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, x - 2y equal to 0, right? This is the linear equation. Second question is, express the following linear equations in the form of ax plus by plus c equal to 0 and then you have to tell ABC in each case, right? So one by one करते हैं इसमें. First part में क्या हो जाएगा, 2x plus 3y minus 9.35 bar equal to 0, ठीक है. a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 3 और c हो जाएगा minus 9.35 bar. Okay. सेकेंड पार्ट, लेटर सी. सेकेंड पार्ट में तो ऑलरेडी ये है सिंपल फॉर्म में, a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -1/5 और c हो जाएगा -10, राइट. थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट में हमें चेंज करना पड़ेगा. इट विल बिकम -2x plus 3y - 6 equal to 0. तो a हो जाएगा -2, b हो जाएगा 3 और c हो जाएगा -6, राइट. फोर्थ पार्ट में this becomes x minus 3y equal to 0. So a will be 1, b will be -3, c will be 0, right? Next we come on to the fifth part. Fifth part के according it will be 2x plus 5y equal to 0. So in this case a is 2, b is 5, c is 0. Sixth part में already given है इसी form में, a is 3,
b is 0 क्योंकि 0 into y है and c is 2. 7th पार्ट में x तो है ही नहीं तो x into 0 है तो a is 0, b is 1 and c is -2. लास्ट वाले एक्सप्रेशन में देखते हैं 8th पार्ट. You can bring it here, -2x plus 5 equal to 0. A is -2, B is 0, C is +5, right? Next, let us see solution of a linear equation. See, अगर आपके पास इस तरह की कोई linear equation in two variable है, x plus 2y equal to 6, तो इसके बहुत सारे solutions होते हैं, infinitely many solutions. क्लास में अगर 10 students solutions लिखेंगे तो सबके different solutions हो सकते हैं और सही भी होंगे, ठीक है? तो जैसे हमें क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है? तो इसके ऐसे वाले केस में हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल, हम एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है? एक टेबल बना लो जिसमें कि हम x और y की वैल्यूज फिल कर देंगे, ठीक है? और जैसे सपोज हमें पता है x plus 2y equal to 6, ये है एक्सप्रेशन हमारा. तो यू कैन राइट डाउन x एंड y लाइक दिस, ठीक है? हमें कितने सॉल्यूशंस निकालने हैं, 4 सॉल्यूशंस. तो इसमें 4 एम्प्टी कॉलम्स बना लो, ठीक है? x की कुछ भी वैल्यूज रख सकते हो आप, जैसे हमने इस केस में ली है 2, 0, एक ली है 6, एक ली है 4, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y निकाल लो इस इक्वेशन को यूज करके. जैसे सपोज हम x को 2 लेते हैं पहले, ठीक है? तो 2 इसमें पुट कर देते हैं, तो दिस गिव्स what will this become, x की जगह 2 रखना है, ठीक है? तो this will become 2 plus 2y equal to 6. तो इससे हमारा y क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक है? तो y यहाँ फिल कर देते हैं. तो 2, 2 is a solution, इस तरह से, ठीक है? अब हमने x को 0 लिया है अगर, तो इक्वेशन में फिर से इसी वाली इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे तो 2y equal to 6 हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा, 3. So this is another solution. एक बार y इसको x को हम ले रहे हैं 6 और एक बार x को ले रहे हैं 4, एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे. 6 पुट करेंगे तो y 0 आ जाएगा और 4 पुट करेंगे तो y 1 आ जाएगा. तो इस तरह से हमारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं. पहला पॉइंट x लिखते हैं, दूसरा y सेपरेटेड बाय कॉमा एंड ब्रैकेट्स के अंदर, राइट? 2 पॉइंट बहुत इजीली फाइंड आउट करने हो तो ऐसे कर लो, एक बार x को 0 पुट कर लो, एक बार y को 0 पुट कर लो. x को 0 पुट करके y निकाल लो और y को 0 पुट करके x निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हैं. उससे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, राइट? हियर इज द फोर्थ एग्जांपल. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. जैसे पहला है हमारा 4x plus 3y is equal to 12. तो इसमें हमने वही ट्रिक लगाई है, अगर 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, एक बार तो हमने x को 0 रख दिया, x को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x तो 0 हो गया, 3y equal to 12, तो y आ गया 4, तो 0,4 सॉल्यूशन हो गया. एक बार y को 0 रख देंगे तो x क्या आ जाएगा, 3, तो 3,0 इज अ सॉल्यूशन. इसी तरह सेकंड वाले में एक बार x को 0, एक बार y को 0, तो 0,0 एक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है? और एक बार x को y 1 रख दिया तो y -2y5 आ गया. तो ऐसा जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन के सभी स्टूडेंट का सेम आंसर है, सबका अलग अलग हो सकता है. 3y equal to 4 है, ठीक है? 3y equal to 4 में y equal to क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो -4/3. तो y फिक्स रहेगा इसमें, चाहे आप x कुछ भी रखो. एक बार आपने x को 0 रख लिया, एक बार 1 रख लिया, y दोनों ही केसेस में -4/3 है, राइट? So we come on to exercise 4.2. First question is, which one of the following options is true and why? Y equal to 3x plus 5. This has unique solution, only 2 solutions, infinitely many solutions. So इसमें third option correct है क्योंकि ये linear equation in 2 variables है और इसकी infinitely many solutions होते हैं. Because for every value of x there is a corresponding value of y and vice versa. Right? So this completes. Second is write 4 solutions for each of the following equations. तो ये सबका आंसर डिफरेंट हो सकता है इस केस में, तो हम अपने आंसर्स लिखते हैं. बट इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप भी सॉल्व करो तो आपके यही आंसर्स हैं, राइट? तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो 2 into 0 plus y equal to 7, ठीक है? तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी. फिर आप x को 1 पुट करो तो y आएगा 5. सॉल्व करके देख सकते हो आप. x को 2 पुट करेंगे y will become 3. x को 4 पुट करो y comes -1, राइट?
नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं। पाई एक्स है, कुछ नहीं, इसे देख के उन्हें लगना चाहिए कि ये टफ है। जैसे सपोज हम x को 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो 1 पुट करोगे तो y आ जाएगा 9 माइनस 5, ठीक है। फिर x को 0 पुट करेंगे तो y 9 आ जाएगा। x को -1 पुट कर लो, ठीक है, दिस विल बिकम y विल बिकम 9 प्लस 5। और y को 0 पुट करके देख लो एक बार, तो जो x है वो आपका 9/π आ जाएगा। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। अब करते हैं थर्ड पार्ट, बहुत सिंपल है ये तो। x को 0 पुट करोगे तो y भी 0 आ जाएगा। x को 4 पुट कर दो, y इज 1। x को -4 पुट कर दो, y इज 1। x को 2 पुट कर दो, y इज 1/2, राइट। x को -4 पुट करेंगे तो y -1 आएगा, सॉरी दिस पॉइंट इज लाइक दिस, क्योंकि 4 into 1 will give 4 and 4 into -1 will give -4, right? Next is check whether the following are solutions of this equation and which are not. तो जस्ट हम ये पॉइंट है जैसे, तो इसमें x की वैल्यू पहले वाली है, y की वैल्यू दूसरे वाली है, ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। जैसे फर्स्ट पुट करके देखते हैं 0, 2, so it will be 0 minus 2 into 2 equal to 4, नहीं ये false है, ठीक है, so this is not a solution। सेकेंड पुट करके देखते हैं 2, 0, so 2 minus 2 into 0 is equal to 4, ये भी false है, so this is also not a solution, ठीक है। थर्ड है 4, 0, so 4 minus 2 into 0 is equal to 4, yes, ये ट्रू है, तो थर्ड पार्ट में yes हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। सो x है √2 -2 into 4 √2 equal to 4, नो इट्स नॉट ट्रू, तो ये भी हमारा नो हो जाएगा फोर्थ पार्ट में, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में 1, 1, so 1 -2 into 1 is 4, नो दिस इज ऑल्सो फॉल्स अगेन। तो बस एक ही पार्ट ट्रू है, बाकी सारे नो है, ठीक है। लास्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if this is a solution of this equation। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू, सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 3 7। सो हियर इज अ समरी ऑफ द चैप्टर। तो हमने देखा था कि कोई इक्वेशन इस फॉर्म की ax + by + c = 0 where a b c are real numbers and a and b are not both 0, it is called a linear equation in two variables. So it has infinitely many solutions, and each point on the graph of a linear equation in two variables is a solution of the linear equation. Okay, every solution of the linear equation is a point on the graph of the linear equation. इसका मीनिंग क्या है, जैसे अगर आप किसी XY ग्राफ पे, ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हो, तो हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है, ठीक है, हर पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, राइट। सो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। And if you have any doubts, you can post it in the comment section. Do not forget to subscribe the channel and stay tuned for more updates. Thanks for watching the video.